الیکشن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع، انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ انتخاب لڑنے کے لیے پاکستانی شہری ہونا بنیادی شرط۔ کاغذات کے لیے کم سے کم عمر 25 سال طے۔ قومی اسمبلی کے لیے فیس 30,000 روپے مقرر۔ صوبائی اسمبلی کے کاغذات کے لیے 20,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ 20 سے 23 دسمبر تک کاغذات جمع ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے متعلقہ صوبے کا رہائشی ہونا ضروری قرار۔ ادھر ملک بھر میں ڈی آر اوز کی ٹریننگ جاری ہے۔ 144 ڈی آر اوز کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ الیکشن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع، انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات مؤخر کرانے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ریمارکس میں کہا، کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہوگا۔ درخواست میں انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں مزید کہا، ہم پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے۔ کہتے ہیں ہم تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں جنہیں پاکستان کے عوام منتخب کرتے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے۔ پاکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی دفاعی تعاون پر شراکت کے منتظر ہیں۔ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے، یہ کہنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں دوسرا دن۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ اس خطاب کی تیاریاں ختمی مراحل میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 13واں اجلاس۔ فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کی انٹرویوز جاری۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اجلاس میں شریک ہیں۔ قومی اسمبلی کی 18 اور صوبائی اسمبلی کی 38 نشستوں کے امیدوار انٹرویو دے رہے ہیں۔ نواز شریف خود امیدواروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اجلاس میں استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا 13واں اجلاس۔ فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اجلاس میں شریک ہیں۔ قومی اسمبلی کی 18 اور صوبائی اسمبلی کی 38 نشستوں کے امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ منظور ہے، یہ احکامات بھی جاری کریں کہ شفاف انتخابات کروائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ کہا، ہم سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے کبھی کسی فورم میں عدلیہ کے خلاف بات نہیں کی۔ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ منظور، یہ احکامات بھی جاری کریں کہ شفاف انتخابات کروائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ غیر جانبدار نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے خود کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کر لیا۔ نیب کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ جس لیول پلینگ سے پی ٹی آئی کو اقتدار ملا وہی حالات ہیں۔ 4 سال سے نیب میں کیس زیر التوا ہے۔ ایک گواہ آیا نہ ہی کیس چلا۔ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے پر یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ ملک میں جاری ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ چوتھا سال مکمل ہوا ہے، 5واں سال جاری ہے اس کیس کا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ جو نیب کا کیس تھا میرے خلاف، وہ 9-10 سال چلنا تھا، تو یہ بھی چلتا رہے گا۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ان کیسوں، ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کون سا جرم یہاں پر ہوا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی، آج بھی وہی حالات ہیں۔ میں نے کہا پشاور میں احتجاج کے دوران وکلاء آپس میں لڑ پڑے۔ احمد فاروق خچک ایڈوکیٹ نے کہا، احتجاج کا مقصد عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرانا ہے۔ خاص سیاسی جماعت کو اتنی رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ سوالات تو اٹھیں گے۔ اس دوران مخالف گروپ کے وکلاء کی ان سے ہاتھا پائی ہو گئی، جس سے ایک وکیل زخمی ہو گیا۔ پشاور میں احتجاج کے دوران وکلاء آپس میں لڑ پڑے۔ احمد فاروق خچک ایڈوکیٹ نے کہا، احتجاج کا مقصد عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرانا ہے۔ خاص سیاسی جماعت کو اتنی رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ سوالات تو اٹھیں گے۔ اس دوران مخالف گروپ کے وکلاء کی ان سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ اس ہاتھا پائی کے نتیجے میں ایک وکیل زخمی ہو گیا۔ یاسر علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی یاسر علی، بتائے گا کیا معاملہ ہوا یہ؟
जी बिल्कुल, आज जो अवामी नेशनल पार्टी की जो ज़ैली तंजीम है मलगरी वकीलान, आज वो पेशावर हाई कोर्ट में एहतजाज कर रहे थे और उनका एहतजाज का मकसद तो पेशावर हाई कोर्ट उनका कहना है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक मखसूस जुमात की हिमायत कर रहा है और इसके खिलाफ वो आज एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर जो पीटीआई के एक वकील थे नौरोज खान, वो इस दौरान वहाँ पर उनके एहतजाज में आए और एनपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों जो मलगरी वकीलान थे और पीटीआई के जो वकील थे उनके माबैन हाथापाई हुई, जिससे एक वकील जख्मी भी हो गया। ताहम जो पीटीआई के जो वकील थे नौरोज खान, इस दौरान उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के बारूम में पनाह ले ली, क्योंकि उन्होंने एक वकील को जख्मी किया था और जो उनके अवामी नेशनल पार्टी के जो वकला का एहतजाज था वो हाई कोर्ट के अहाते में जारी था और उनका मौकफ था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एक मखसूस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने उनका मुतालबा था कि जो हाई कोर्ट को है जो सियासी जुमात का अखाड़ा न बनाया जाए और तमाम लोगों से जो आम साहिलीन को भी इंसाफ फराहम किया जाए। सिर्फ एक पार्टी के लिए अदालत को महसूस न किया जाए, क्योंकि उनके केसेस रोजाना की बुनियाद पर लगते हैं और इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में पेंडेंसी भी काफी ज्यादा है। तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से उनसे मुतालबा किया कि वो मखसूस की जुमात की हिमायत छोड़ दे। जो हाथापाई है वो एनपी और पीटीआई के वकला के माबैन हुई थी, जिसकी वजह से जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पर हालात भी कशीदा हुए थे, जिसके बाद पुलिस की नफसी को भी तलब की गई। जो वकील थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के बारूम में पनाह ली थी, जिसकी वजह से जो एक वकील थे वो जख्मी हुए थे, उनको पेशावर जो मकामी अस्पताल वहाँ पर मुंतकिल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अली इस बारे में अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन ने मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती उमूर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। फनी तरबियत की फराहमी में रोज़ बरोज़ जिद्दत आ रही है। तमाम चीज़ों में अहम चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। बैरून मुमालिक में तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1216 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। जी हाँ, आपको अपडेट करें इस बारे में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताएंगे। 1216 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सका। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा 1216 पॉइंट्स की मंदी क्यों देखी गई, क्या वजूहात हैं इसकी? जी, मुस्बत माशी इशारों के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी प्रॉफिट टेकिंग सेंटीमेंट्स के सबब कारोबार के आगाज से ही मंदी का तसलसल बरकरार है, जिससे इंडेक्स की 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई है और फिल वक्त 100 इंडेक्स 1,115 पॉइंट्स की बड़ी नौयत की कमी से 64,088 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजूम 66 करोड़ 86 लाख हिस्से से ज्यादा के सौदों पर मुश्तमिल है। मंदी के इस रुझान में इंतखाबात से मुताल्लिक फैलने वाली अफवाहों और गुज़श्ता एक माह की मुसलसल तेजी में उधार पर हैसियत की खरीदारी करने वालों की जानिब से धड़ाधड़ हैसियत की फरोख्त का रुझान बुनियादी असबाब हैं। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता एक माह में तेजी के तसलसल से मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, लिहाजा कैपिटल मार्केट में बेहतरी के लिए तकनीकी दुरुस्तगी भी जरूरी हो गई थी। माहिरीन की पेशगोई है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बेहतरी नजर आने के इम्कानात हैं। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से वाबस्ता मुस्बत तवक्कुआत और नवंबर में करंट अकाउंट खसारा $9 मिलियन सरप्लस होने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 12% इजाफे जैसे मुस्बत इशारियों से दूर अंदेश सरमायाकारों की जानिब से निचली कीमतों पर हिस्से की खरीदारी सरगर्मियां भी देखी जा रही हैं, जिससे फंडामेंटल बेहतर होते जा रहे हैं और तवक्को है कि करेक्शन फेज गुजरने के बाद मार्केट में दोबारा रिकवरी नजर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस हो गया। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में
64% तक कमी रिकॉर्ड की गई। जी हां, माली साल 2024 में जुलाई से लेकर नवंबर में करंट अकाउंट का खसारा कम होकर 1.16 अरब डॉलर्स रह गया। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर्स था। करंट अकाउंट खसारे में कमी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तक़वियत देने में मददगार साबित होगी। नवंबर 2023 में बरामदात और तरसीलात दोनों में बेहतरी आई है। अहम खबर आपको देते हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास, फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इजलास में शरीक हैं। कौमी असम्बली की 18 और सूबाई असम्बली की 38 नशिस्तों के उम्मीदवार इंटरव्यूज दे रहे हैं। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद चौधरी से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी तैयारियों को आखिरी मराहिल में लेके गई है। अब आज भी उनका 13वां जो इजलास है पार्लिमानी बोर्ड का, वो इस वक्त जारी है पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में, जहां पर पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज और उनके समेत 35 रुकनी जो पार्लिमानी बोर्ड है वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। और जो वहाँ से 4 इजला हैं, वहाँ से आने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं और टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उनके तफसीली इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इस हवाले से 10 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ था। आज 4 इजला हैं फैसलाबाद डिवीजन के, उन चारों इजला के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके वक्फे से जिला वाइज अलग अलग इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। पार्टी राय का ये कहना है कि नवाज शरीफ हर उम्मीदवार को खुद उनको सुन रहे हैं और उसकी काबिलियत, अहलियत और उसके जो फलाही काम उसके हल्के में हो रहे हैं या उन्होंने माजी में किए हैं, उसके हवाले से हर उम्मीदवार से फर्दन वो तजावीज़ ले रहे हैं। ये मजमूई तौर के ऊपर 13वां इजलास है, जबकि मजीद अब 3 रोज मजीद इजलास होंगे। कल जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से इजलास होगा, जबकि उससे अगले रोज जो लाहौर डिवीजन के 3 इजला हैं, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा, उसका होगा। आखिरी जो इजलास है वो जुम्मे के रोज होगा, जिसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज होंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। खेल के मैदान से खबर, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। इंजरी का शिकार शादाब खान दस्तयाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कौमी सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से 13 और 17 रुकनी कौमी टीम का इंतखाब करके मंजूरी के लिए चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दी है। मुमकिना खिलाड़ियों में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ शामिल हैं। वसीम जूनियर, जमान खान, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इफ्तिखार अहमद, शान मसूद, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज को भी शामिल किया गया है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।